भेजा हुआ है. What is coupling? So coupling is a measure of degree of interdependence between the modules. That means how the modules are related with each other. Degree of their dependency is known as the coupling. A good software will have always low coupling. जो good software design है that must have low coupling. Now you can see that there are 6 types of coupling. First is data coupling, that is considered as the best coupling. That means data coupling should be there in your software design. So data coupling means where the data is related with two modules. मतलब दो modules के बीच में अगर data same data use कर रहे हैं वो, तो that is known as data coupling. Second is stamp coupling. Stamp coupling में क्या होता है, अगर वो कुछ structures use कर रहे हैं, same structures use कर रहे हैं, structure बना, that's why data coupling is best. And content coupling is worst because here coupling is very large, highly coupled. In content coupling, the modules are highly coupled. Okay, that's why this is a worst type of coupling, because the modules in this are related to each other on the basis of content. That means all the content, whatever the content is, that is being shared between the modules. Okay, that means the modules are totally dependent on each other. That's why content coupling is having the worst coupling. Okay, so third is control coupling, fourth is external coupling, and next is common coupling. Now I am going to discuss all these couplings in detail. Okay, so your software design should be having the data coupling. So what is data coupling? In data coupling, the components are independent to each other and communicating through data. That means, now what are the components here? The component means the modules. In data coupling, the modules are independent to each other. That means they are not depending upon each other. They are just communicating through the data. They are communicating with each other using some data. For example, an integer, float, or character. Okay, so these are the actually data types that you use in C or C++. Whenever the data or module communicate with each other by using, or you can say passing, these types of parameters. Okay, by passing these parameters, that is known as data coupling. Second is stamp coupling. Now what is stamp coupling? In stamp coupling, the complete data structure is passed from one module to another module. That means it will increase the coupling. In data coupling, there is very low coupling. In stamp coupling, the coupling will increase to some extent. Well, a record in Pascal or a structure in C, okay, whenever more than one module contain the same data structure, that is stamp coupling. So next is control coupling. Control module, if data from one module is used to direct the order of instruction execution in another. The function in one module is controlling the another function in another module. Okay, किसी एक मॉड्यूल में आपने एक फंक्शन बनाया और वो फंक्शन आपने एक मॉड्यूल में बनाया बट वो दूसरे मॉड्यूल की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहा है. सो दैट मीन्स इसमें डिपेंडेंसी है. सो दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल कपलिंग. इट एग्जिस्ट बिटवीन टू मॉड्यूल इफ डेटा फ्रॉम वन मॉड्यूल इज यूज टू direct the order of instruction execution in another module. Okay, example is, suppose we are having two modules. We have given flag set instruction in one module, but that condition is tested in another module. Okay, that means flag is being used in both the modules. Flag set हुआ एक मॉड्यूल में, उसको टेस्ट किया जा रहा है दूसरे मॉड्यूल में. That means ये वाला मॉड्यूल जो है ये डिपेंडेंट है इस फ्लैग सेट की वैल्यू पे. Okay, that means this is known as the control coupling. One module is controlled by another module. So next type of coupling is external coupling. Now what is external coupling? In external coupling, the module depend on other module external to the software being developed or a particular type of hardware. Now what is the meaning of external coupling here? That means the modules are not dependent on each other on the basis of internal structure. Okay, internal structure के basis पे वो एक दूसरे पे dependent नहीं है. They are dependent on each other based on the external factors. अब external factors क्या हो सकते हैं? जो वो हार्डवेयर यूज कर रहे हैं. ओके, हो सकता है सेम हार्डवेयर यूज कर रहे हो, प्रोटोकॉल फाइल्स के थ्रू या डिवाइस फॉर्मेट, इनका फॉर्मेट. नेक्स्ट इज कॉमन कपलिंग. सो व्हाट इज कॉमन कपलिंग? नाउ कॉमन कपलिंग मीन्स, सपोज यू आर हैविंग टू मॉड्यूल्स. वन इज मॉड्यूल 1, second is module 2. You usually do this in the C++ programming.
You share some, not share, you declare some global data. मेन के बाहर आप कुछ डेटा ग्लोबली डिक्लेयर करते हो जो कि दोनों मॉड्यूल्स के लिए सेम होता है कि नहीं होता है ना ऐसा। आपने कोई फंक्शन डिक्लेयर किया जो कि दोनों, जो भी उसके मेन के अंदर जो भी मॉड्यूल्स हैं, जो भी क्लासेस हैं, उनके लिए चलेगा वो। मतलब वो ग्लोबल डेटा, ग्लोबल का मतलब क्या होता है, दैट इज डिक्लेयर्ड एक्सप्लिसिटली। इसको डिक्लेयर किया यहाँ पे दोनों मॉड्यूल्स के लिए वो काम करेगा। आपने क्या किया, हर मॉड्यूल में डिक्लेयर करने की बजाय उसको ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। सो अगर आपने उसमें चेंजेस करने हैं, अगर आपने ग्लोबल डेटा में चेंजेस करोगे तो दोनों मॉड्यूल्स की फंक्शनिंग पे उसका इफेक्ट होगा। इसका मतलब इसमें क्या होगी, डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी, डिपेंडेंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर ग्लोबल डेटा चेंज करोगे तो दोनों मॉड्यूल्स में चेंज होगा। ठीक है। सो इट इज़ नॉन एज द कॉमन कपलिंग, मतलब दोनों जो मॉड्यूल हैं वो एक कॉमन मेथड के थ्रू कपल किए गए हैं। कॉमन मेथड कौन सा है, डिक्लेयरिंग ग्लोबल डेटा, सेम ग्लोबल डेटा फॉर बोथ द मॉड्यूल्स। ओके, so next is content coupling. What is content coupling? In content coupling, it is the worst case of coupling because in this modules are totally dependent on each other. So your software design should not contain the content coupling. In a content coupling, one module can modify the data of another module, or control flow is passed from one module to other module. This is the worst form of coupling and should be avoided. Okay, cohesion. Cohesion is actually the measure of functional strength of module. What is cohesion? Cohesion means functional strength of module. Okay, your software design must contain high cohesion and low coupling. मतलब डिपेंडेंसी सबसे कम होनी चाहिए उनमें और फंक्शनल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। दैट मीन्स जो भी फंक्शंस आप उसमें डिफाइन कर रहे हो, दैट मस्ट कोऑपरेट विद ईच अदर टू ऑब्टेन अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, कोहेजन इज अ measure of the degree to which the elements of the module are functionally related. That means more than one modules आपस में related हैं, that is known as the high cohesion. High cohesion means हर मॉड्यूल में जो फंक्शंस डिफाइन किए गए हैं उनका मोटिव क्या है, सिंगल ऑब्जेक्टिव है उनका, their aim is to achieve one objective. Okay, so it is the degree to which all elements directed towards performing a single task are contained in the component. अब component क्या है, what is component here? component का मतलब क्या है, मान लो आपने एक क्लास बनाई, क्लास में क्या है, उसके फंक्शंस भी होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स भी होंगे, तो ये क्या है, कंप्लीटली कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे, एक कंपोनेंट है। ओके, सो इन कोहेजन इट इज अ डिग्री टू विच ऑल एलिमेंट्स क्या है, अब जो भी इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर जो भी ये एलिमेंट्स हैं, वो एलिमेंट्स दे वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। ओके, एक क्लास में जो भी फंक्शंस डिफाइन किए हैं आपने, they work together to achieve a single objective, that is known as cohesion. Basically cohesion is the internal glue. internal glue क्या है, glue का मतलब क्या होता है, जिससे हम किसी चीज को पेस्ट कर सकते हैं, चिपका सकते हैं। internal glue मतलब इस कंपोनेंट में जो भी फंक्शंस हैं वो आपस में कंप्लीटली एसोसिएटेड होने चाहिए। ठीक है, जुड़े होने चाहिए आपस में। दैट मीन्स दे आर लाइक द इंटरनल ग्लू दैट कीप्स अ मॉड्यूल टुगेदर, जो एक दूसरे मॉड्यूल्स को इकट्ठे रखता है। ओके, अ गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन will have high cohesion. Now these are the types of cohesion. Here this type of cohesion is the best cohesion, function cohesion, or you can say functional cohesion. Somewhere it is written functional cohesion and it's written somewhere as sequential. In book it's written as sequential. Both are same actually. Okay, so here the software design that consists of functional cohesion. That means the function inside the module are completely related with each other to obtain a single objective. Okay, so that is called as functional cohesion. Second is sequential cohesion, then communicational cohesion, then procedural cohesion, then temporal cohesion, then logical, and then coincidental. Now
सो व्हाट इज फंक्शनल कोहेजन? फंक्शनल कोहेजन है जब एक मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं वो सारे आपस में रिलेटेड हैं और उनका मोटिव एक है, मीन्स उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है। प्रोसेस सेट टू पोजेस, सॉरी पोजेस मतलब हैविंग। Functional cohesion, if different functions of the module, means we are declaring different functions in one module. Different functions of the module cooperate with each other to perform a single task. For example, अब इसकी एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, a module containing all the functions required to manage employees payroll. अब मान लो ये एक फंक्शन है, एक मॉड्यूल है जिसका पर्पस क्या है, एम्प्लॉयज पेरोल, मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना, एक मॉड्यूल हमने बनाया उसके लिए। अब उस मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं? कंप्यूट ओवर टाइम, कंप्यूट वर्क आवर्स, इज ऑल द फंक्शंस। ये फंक्शन कंप्यूट ओवर टाइम, कंप्यूट वर्क आवर्स, ये दोनों जो फंक्शन है ये एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करेंगे? दे विल कैलकुलेट द पे स्लिप ऑफ द एम्प्लॉय, कि कितनी पे देनी है उसको। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे? टू कैलकुलेट द पे स्लिप। फंक्शंस यहाँ पे दो यूज हो रहे हैं, एक हो रहा है ओवर टाइम वाला, एक हो रहा है वर्क आवर वाला। दोनों फंक्शन जब कलेक्टिवली काम करते हैं किसी एक फंक्शन को, एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, तो उसको बोलते हैं हम फंक्शनल कोहेजन। ओके, सो आपके सॉफ्टवेयर में ये चीज होनी चाहिए, फंक्शनल कोहेजन। नेक्स्ट है आपका सीक्वेंशियल कोहेजन। अब सीक्वेंशियल में क्या होगा? सीक्वेंशियल का मतलब क्या है? जब डेटा फ्लो करता है बिटवीन द डिफरेंट मॉड्यूल्स। मतलब अगर हमारे पास दो मॉड्यूल्स, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, जब एक की जो आउटपुट है वो दूसरे की इनपुट बनेगी, इसमें आउटपुट्स सम डेटा, किसी एलिमेंट की कोई आउटपुट आई और वो आउटपुट दूसरे किसी मॉड्यूल की इनपुट बनी। ओके, दैट इज डेटा फ्लो बिटवीन द पार्ट। It occurs naturally in functional programming language in an online, suppose आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? जब भी आप फ्लिपकार्ट पे गए, अमेजोन पे गए, आपने ऑर्डर प्लेस करना है, कोई आपने सेलेक्ट किया, तो वहाँ पे क्या होगा? पहले अवेलेबिलिटी चेक होगी उसकी, जब अवेलेबल हो गया वो, उसके बाद क्या होगा? ऑर्डर प्लेस हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई ऑनलाइन स्टोर की एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर है। ओके, सो कंसीडर दैट आफ्टर अ कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर सम आइटम, जब आपने किसी आइटम के लिए रिक्वेस्ट की, इट इज फर्स्ट डिटरमाइंड इफ द आइटम इज इन स्टॉक। सबसे पहले क्या केस, इफ द फंक्शन, कौन कौन से फंक्शन आएंगे इसमें? क्रिएट ऑर्डर, ऑर्डर क्रिएट किया, उसके बाद आइटम की अवेलेबिलिटी चेक की, उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया अगर आइटम अवेलेबल है, ठीक है। सो दीज आर प्लेस इन सिंगल मॉड्यूल, दैट मीन्स एक ही मॉड्यूल में मोर देन वन फंक्शन यूज हो रहे हैं, 3 फंक्शन यूज हो रहे हैं एक ही मॉड्यूल में, और एक जो फंक्शन है दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट है। आइटम की अवेलेबिलिटी वो ऐसे तो चेक नहीं करेगा, अगर किसी ने ऑर्डर दिया उसके बाद ही वो आइटम की अवेलेबिलिटी चेक करेगा। अगर वो ऑर्डर अवेलेबल है, आइटम अवेलेबल है अगर वो, तभी ऑर्डर प्लेस होगा। दैट मीन्स ये तीनों फंक्शंस आपस में क्या है? डिपेंडेंट है। सो दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंशियल कोहेजन। ओके, सो थर्ड इज कम्युनिकेशनल कोहेजन। इसमें क्या होगा? जब दो मॉड्यूल्स कम्युनिकेट करेंगे आपस में, if all the functions of the module refer to or update the same data structure, for example, अब एग्जाम्पल क्या है? अपडेट रिकॉर्ड इन, एक मिनट, ये क्या है? इन द डेटाबेस आएगा यहाँ पे, अपडेट रिकॉर्ड इन द डेटाबेस एंड सेंड इट टू द प्रिंटर। अब इसमें क्या होगा? कम्युनिकेशन कोहेजन में मान लो आपने कोई चीज अपडेट कर ली है, कोई डेटा आपने अपडेट करना है, डेटा अपडेट करने के बाद आप कमांड दे रहे हो प्रिंट की, मतलब जो प्रिंट की कमांड है वो डिपेंडेंट है डेटा अपडेशन पे। तो दैट इज नोन एज कम्युनिकेशनल कोहेजन। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजरल कोहेजन। कम्युनिकेशन में था क्या? इफ ऑल द फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल रेफर टू और अपडेट द सेम डेटा स्ट्रक्चर, मतलब सेम डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट करके उसकी आउटपुट आ रही है, दैट इज नोन एज कम्युनिकेशनल कोहेजन। नेक्स्ट है आपका प्रोसीजर। प्रोसीजर का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप चलेगा, सिक्वेंशियल की तरह ही ये काम करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है? प्रोसीजर में होता क्या है? इफ द सेट ऑफ द फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शन मतलब मोर देन वन फंक्शन ऑफ द मॉड्यूल आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर, मतलब एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, फिर दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ एंड सो ऑन, बट दीज फंक्शंस मे वर्क टुवर्ड्स एंटायर डिफरेंट पर्पस।
अब इनमें क्या होगा, जो फंक्शंस बनाए गए हैं उनका ये नहीं होगा कि एक फंक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा था ऊपर सीक्वेंशियल कोहेजन में, क्रिएट ऑर्डर, चेक आइटम अवेलेबिलिटी, प्लेस ऑर्डर ऑन वेंडर, ये तीनों क्या थे, इनका ऑब्जेक्टिव सेम था, एक ही ऑब्जेक्टिव था इनका, ऑर्डर को लेना, मतलब आइटम को परचेज करना। बट प्रोसीजर में क्या होगा, जो फंक्शंस होंगे उनका जो मोटिव होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, एंड ऑपरेट ऑन डिफरेंट डेटा, डेटा भी डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल फंक्शंस, लॉगिन, लॉगिन फंक्शन है, प्लेस ऑर्डर है, उसके बाद चेक ऑर्डर है, फिर लॉग आउट है। ये सारे फंक्शंस क्या हैं, ये डिफरेंट डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट दे एग्जीक्यूट वन आफ्टर द अदर। पर इनका जो सीक्वेंस है वो अगर लॉग इन करोगे तभी ऑर्डर प्लेस कर पाओगे, तभी ऑर्डर चेक कर पाओगे, तभी लॉग आउट हो पाओगे। ऑर्डर सीक्वेंस सेम रहेगा, ऐसे ही होंगे एग्जीक्यूट, पर ये हो सकता है कि डिफरेंट डेटा हो इसमें, ये जरूरी नहीं है कि सेम डेटा पे ही इसको एग्जीक्यूट करना है इन फंक्शंस को। सो दिस इज कॉल्ड एज द प्रोसीजरल कोहेजन। टेम्पोरल कोहेजन में क्या, it is actually related to the time span। टाइम स्पैन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, उससे रिलेटेड है ये टेम्पोरल कोहेजन। इसमें क्या है, द एलिमेंट्स आर रिलेटेड, नाउ हियर यू कैन सी दैट द एलिमेंट्स आर रिलेटेड बाय देयर टाइमिंग इन्वॉल्व्ड। अ मॉड्यूल कनेक्टेड विद टेम्पोरल कोहेजन, ऑल द टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम स्पैन। मतलब एक मॉड्यूल में जो भी, अब इसमें क्या है, अ मॉड्यूल कनेक्टेड विद टेम्पोरल कोहेजन, हम बोलेंगे कि इस मॉड्यूल में टेम्पोरल कोहेजन है, जिसमें क्या होगा, सारे जो टास्क हैं उसमें मोर देन वन टास्क होंगे, जितने भी टास्क हैं वो सेम टाइम इंटरवल में एग्जीक्यूट होंगे, तभी हम बोलेंगे कि इसमें क्या है, टेम्पोरल कोहेजन। सो इसमें क्या हो रहा है, अब टेम्पोरल कोहेजन, ऑल द टास्क मस्ट बी एग्जीक्यूटेड इन द सेम टाइम स्पैन। एग्जाम्पल, व्हेन अ कंप्यूटर इज बूटेड, जब कंप्यूटर को आप स्टार्ट करते हो कितने सारे प्रोसेसेस हो जाते हैं सेम टाइम में, कौन कौन से होते हैं, अब सेवरल फंक्शंस नीड टू बी परफॉर्म। कंप्यूटर इज बूटेड का मतलब समझते हो, बूटेड का मतलब है कि जब आपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को स्टार्ट किया, पीसी को स्टार्ट किया, नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। कौन कौन से फंक्शंस हो सकते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ मेमोरी, मेमोरी इनिशियलाइज होना, डिवाइसेस इनिशियलाइज होना, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, नंबर ऑफ फंक्शंस has to be performed in the same time interval. So it is known as the temporal cohesion. When a single module क्या था, सिर्फ आपने सिस्टम का ऑन वाला स्विच ऑन किया, मतलब जो आपका स्विच है उसको ऑन किया, प्रेस किया, और नंबर ऑफ फंक्शंस जो है वो एक ही टाइम स्पैन में एग्जीक्यूट हो गए। सो दिस इज नोन एज टेम्पोरल कोहेजन। व्हेन अ सिंगल मॉड्यूल परफॉर्म ऑल दीज टास्क, ये सारे टास्क को सेम टाइम में कंप्लीट करता है, दैट इज नोन एज टेम्पोरल कोहेजन। नेक्स्ट इज योर लॉजिकल कोहेजन। लॉजिकल कोहेजन क्या है, द एलिमेंट्स आर लॉजिकल रिलेटेड एंड नॉट फंक्शनली। अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कहीं पे, फिजिकल होता है एक होता है लॉजिकल, ठीक है, ठीक है। तो लॉजिकल कोहेजन में क्या होगा, द एलिमेंट्स आर लॉजिकली रिलेटेड होंगे वो, बट फंक्शनली दे आर नॉट रिलेटेड, ओके। एग्जाम्पल क्या है, अ कॉम्पोनेंट रीड्स इनपुट फ्रॉम टेप, डिस्क एंड नेटवर्क। कोई कॉम्पोनेंट है वो डेटा को रीड कर रहा है टेप से, डिस्क से या नेटवर्क से। इसमें क्या है, ये तीनों चीज़ें डिफरेंट है, टेप अलग चीज़ है, डिस्क अलग चीज़ है, नेटवर्क अलग चीज़ है, पर उसका फंक्शन क्या है, वो रीड कर रहा है, फंक्शन सेम है। ऑल द कोड फॉर दीज फंक्शंस इज इन द सेम कॉम्पोनेंट। अब ये तीनों चीज़ें, रीड ऑपरेशन हो रहा है तो एक ही मॉड्यूल में हम लिख देंगे इसका कोड, रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तीनों के लिए, कहाँ कहाँ से, टेप से, डिस्क से, नेटवर्क के लिए, ओके। अब इसमें क्या होगा, इज इन द सेम कंपोनेंट, ऑपरेशंस आर रिलेटेड। ऑपरेशंस क्या है, रिलेटेड है, रीड करेगा टेप से, रीड करेगा डिस्क से, ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, रीड इज द ऑपरेशन। ऑपरेशंस आर रिलेटेड बट द फंक्शंस आर सिग्निफिकेंटली, फंक्शन क्या है इनका, डिफरेंट होगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ लॉजिकल कोहेजन। सो लास्ट टाइप ऑफ द कोहेजन इज कोइंसिडेंटल टाइप ऑफ कोहेजन, नॉट द बेस्ट। बेस्ट कौन सा होगा, फंक्शनल। फंक्शनल जो होगा दैट इज बेस्ट, क्योंकि उसमें सारे फंक्शंस एक मॉड्यूल में दे आर रिलेटेड विद ईच अदर टू परफॉर्म अ सिंगल टास्क। कोइंसिडेंटल में अब क्या होगा, द एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, एलिमेंट्स आपस में उनका कोई रिलेशन ही नहीं होगा, ठीक है। द एलिमेंट्स हैव नो कंसेप्चुअल रिलेशनशिप
अदर देन लोकेशन इन सोर्स कोड। सोर्स कोड में मतलब हो सकता है सेम लोकेशन पे वो हों, बट कंसेप्चुअली उनका कोई रिलेशन नहीं है, लिंक नहीं है उनका। इट इज एक्सीडेंटल एंड द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कपलिंग, सॉरी कोहेजन। एग्जाम्पल क्या है इसकी? प्रिंट नेक्स्ट लाइन एंड रिवर्स द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग इन अ सिंगल कंपोनेंट। मान लो आप ये कमांड दे रहे हो, एक कोई किसी मॉड्यूल में आपने एक इंस्ट्रक्शन दी, क्या इंस्ट्रक्शन है? प्रिंट नेक्स्ट लाइन प्रिंट करे एंड रिवर्स द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। फंक्शंस दोनों के यहाँ हैं, डिफरेंट है, ठीक है, बट कर क्या रहा है? ये प्रिंट कर रहा है। फंक्शन सेम है बट जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट है। सो दिस इज नोन एज द को इंसिडेंटल कोहेजन, जिसमें एलिमेंट्स आपस में क्या है? दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर। नेक्स्ट लाइन बिल्कुल ही डिफरेंट है, रिवर्स द कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग ये डिफरेंट है। दोनों चीजें क्या है इसमें? फंक्शन क्या है? डिफरेंट है। ओके, so this is called as a coincidental cohesion. So we have done